Hi everyone, this is Sohaib Hassan, co-founder BMLH, and we are back again with yet another exciting episode of BMLH Studio, the award-winning marketers podcast. Today is very special as we are recording our podcast live from Dubai, and we are really happy to have Mr. Music with us. He always says listening is everything, and we will listen from him everything today. So get your sleeves rolled, and we are going to have so much fun over here. So welcome Tala bhai to BMLS Studio. Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया that you've invited me here. I'm happy to be here with you guys. And before you start anything, I just want to make sure that I appreciate all the hard work you and Taha have been putting in the network and socializing and making sure that you bring all the marketeers together and we are able to do knowledge sharing. So I really appreciate all the effort. Jazakallah. I think it's all possible because of people like you. You have been a great inspiration. Not listening from you as much, so that's why we have invited you, but have been listening a lot on Spotify. तो तला भाई की सबसे अच्छी बात ये है कि he will, if you are into music, he will make you listen everything. ऐसा ही है Spotify पे सब बिल्कुल, सब मिलता है. of course. ज़बरदस्त. तो तला भाई, our audience would like to know a bit more about yourself. How has your journey been as a marketer? क्या कर रहे हैं आप? इससे पहले कहाँ काम करते रहे हैं और क्या जर्नी रही? Sure. अच्छा, मेरी जो जर्नी है, it has been very full of changes. Like I have done a lot of different kind of stints and transition from one end to the other end. So I think you might find it very different versus a lot of other people. I started off my career back in 2010 as a management trainee in Starcom. I was उस time पे it used to be called Park Mediacom, PMC कहलाती थी, and I was on the Nokia account. Nokia के account पे I was working, and naturally because of Nokia वहाँ digital centric plans versus other players ज़्यादा होते थे because of the nature of the business and handset and all that. इसलिए थोड़ा मेरा डिजिटल की तरफ भी काफ़ी इंक्लिनेशन था. इवेंचुअली एक अपॉर्चुनिटी आई कि जो है पूरे ग्रुप का डिजिटल जो है रन करना था और कोई था नहीं. सो मी एंड माई बॉस उस ज़माने में, माई बॉस वॉज रियली इंटरेस्टेड एज वेल. सो ही सेड कि विल यू वर्क विथ मी ऑन दिस एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. said yeah, sure, why not? I mean, I'll get to learn as well, and it's an excellent chance for me to work on other clients as well. So साथ साथ ये भी करना शुरू कर दिया. तो डिजिटल की वहाँ से एक अफिनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई और एक इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया. फिर eventually Nokia moved out due to a global change in affiliation, and then I started working on the National Foods account. नेशनल फूड्स पे काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी मज़ा आया. इवेंचुअली इतना मज़ा आया कि उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करें, हमारी साइड पर आ जाएं. वी डोंट हैव अ मीडिया लीड एंड वी फील दैट वी नीड समबडी. सो इट वाज अमेजिंग फॉर मी. आई हैड जस्ट स्पेंट 2 years on the agency side at that point. So in 2012, early 2012, I moved on to the client side in National Foods as the first media manager of National Foods. Spent another 2 years in National Foods, did a lot of interesting things. उस ज़माने में हमने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे. नेशनल मेड इजी, वो आज तक चल रहा है. तो दैट वाज those were things जो हमने खुद लॉन्च की थी, पार्ट ऑफ दैट टीम जो हमने लॉन्च की थी, और नेशनल की बहुत बड़ी बिग बेट बन गया वो. Then Mondelez came calling that we have a position, and eventually एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ, I was having lunch with my colleagues, I get a call from this headhunter कि there is this role, would you be interested? I was like yeah, why not, it's a global brand. आपने सोचा कुछ मीठा हो जाए? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हो जाए. तो बहुत मसाले हो गए थे उस टाइम तक. So then जो है went into Mondelez. Initially I went in, I was interviewed for a position called marketing services manager, and then when I was joining they told me we need you to support us in something. I was like जी बताइए. They're like we know you don't have the background of consumer shopper insights, but we need somebody to take that responsibility. अच्छा, उस टाइम तक जो है मेरी जनरली दुनिया ज़िंदगी में अप्रोच ये रही है कि आई ऑलवेज सेट कॉन्टेक्स्ट कि देखेंगे ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है. आई डू नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस, बट आई एम ओके टू लर्न. आई एम हैप्पी टू टेक ऑन द चैलेंज एज लॉन्ग एज यू हैव द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी. दिस आइडिया वी आर गुड, वी अंडरस्टैंड. तो फिर मैंने साथ में डबल हैटिंग शुरू कर दी. जाते ही Mondelez के अंदर आई वाज डूइंग मार्केटिंग सर्विसेज एज वेल एज कंज्यूमर शॉपर इनसाइट्स. और कंज्यूमर शॉपर इनसाइट्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, was not my passion. I never really enjoyed it, but I did it. What that did was, from my perspective, I got a flavor of a different area जो कि शायद मुझे वैसे नहीं मिलता. And from the company perspective, they saw that अच्छा, he's flexible, he's open to taking on new challenges. And what that did was, eventually there was an opportunity कि मैं फिर I was leading media for Pakistan. Eventually region में चली गई थी consumer shopper insights, so मेरी इससे जान छूट गई थी. Thank God for that. Then media में I was leading for Pakistan. फिर एक opportunity आई to lead media for Pakistan and Egypt
and travel back and forth between both the countries. Language barrier था, culture barrier था, Egypt का इतना मुझे पता नहीं था. I was like नहीं सही है, okay, I'll take on. So मैंने फिर ये responsibility ले ली. तो मैं I was leading media, I was traveling back and forth, I was managing both markets. Again, language barrier बहुत बड़ा था, culture barrier बहुत बड़ा था, but you know it was fun. I got to learn something new. करते कहानी आगे आई. फिर कोविड आ गया. कोविड के बाद वन ऑफ द कैटेगरी लीड्स वाज गोइंग ऑन हर मैटरनिटी. So again, the company told me that, you know, she's going and we feel that, you know, it will be a good opportunity for you to try your hand at marketing. And I had already expressed earlier कि मैंने media बहुत कर लिया. I want to like, you know, move out into a new vertical. So they said it's a good opportunity. ये extended leave पे जा रही है तो ये 8-9 महीने का होगा. It will be a lot of stress for you because हार्डकोर मीडिया मैनेजमेंट करना 2 कंट्रीज की एंड देन कैटेगरी भी लीड करना पूरी चॉकलेट्स, इट विल बी टफ फॉर यू. आई वाज लाइक ओके, आई विल टेक इट ऑन एंड इट वाज एक्चुअली टफ. मतलब मैं सुबह 9 बजे काम स्टार्ट करता था, रात को 9 बजे तक जो चलता रहता था और पूरा हफ्ता ऐसे निकलता था. बट आई गॉट टू लर्न अ लॉट एंड आई एम ऑल फॉर वर्क लाइफ बैलेंस. बट ये एक ऐसा चैलेंज था दैट ओपनड अप माई होराइजन्स. उसके बाद हुआ ये कि जब वो द लेडी केम बैक फ्रॉम हर मैटरनिटी, there was another position on the beverages category which was getting Tang, exactly. So they told me that we want you to like transition into marketing because we've seen how you worked and we really enjoyed it. So then I did beverages का रोल करने के बाद फिर वापस मैं चॉकलेट्स पे आया. चॉकलेट्स कैडबरी डेयरी मिल्क के ऊपर जो है मैंने लीड किया. And then eventually Spotify happened and they had a position for marketing manager for South Asia subset. I took that on. यहाँ पे आने के बाद भी I kept on taking additional projects और उससे हुआ ये कि very recently they gave me the UAE responsibility as well. So somehow, you know, ये additional responsibility लेने का जो आदत है या जो knack है, it somehow works and it opens doors, and that has been the theme throughout my career in every company I've been. जबरदस्त. तो full यानी कि your life as a marketer has always been मसालेदार. काफी लेकिन ये चॉकलेट में थी और फिर सोल फॉर म्यूजिक फॉर फूड फॉर योर सोल भी था. फूड फॉर योर सोल भी था. चैलेंज जबरदस्त. नहीं वो तो आपने मैंने देखा कि मतलब मसाले, फिर टैंग में थोड़ी सी खटास, फिर जो है आपने मिठास, सब कुछ पूरी कर लिया. ज़बरदस्त. तो फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अब आप आ गए टेक मार्केटिंग में. बिल्कुल ज़बरदस्त. तो यू टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. आई एम श्योर आपका मोर देन डेकेड का एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह. सही है. तो मस्ट हैव बीन गॉन थ्रू सम ह्यूमरिस्टिक सिचुएशंस. कहीं पे कोई आप शूट कर रहे हो या कोई भी सिचुएशन, कैन यू रिकॉल एनी फन सिचुएशन, कोई फनी मोमेंट? काफ़ी हुई हैं फ़नी और आई थिंक फुल ऑफ टेंशन एज वेल. 2 बताता हूँ आपको एक्चुअली. मैं एक तो ये हुई थी कि जब मैं जब नेशनल में था तो वी हैड अ प्रोडक्ट कॉल्ड फ्रूटीली व्हिच वाज अ कंपटीशन ऑफ टैंग. वो ज़माने में तो कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं फिर इवेंचुअली आई विल गो एंड वर्क फॉर टैंग. कैंपेन हो गई, सब शूट हो गया, बस अब जो है ना लाइव होने वाली है, 3 दिन रह गए. उस 3 दिन के दौरान टीजर्स टैंग ने लगाए आउट ऑफ होम पे पूरे शहर के अंदर. एंड दैट टीजर वाज द सेम लाइन व्हिच वाज आवर कैंपेन लाइन. एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस. आई नो इट वाज अ कोइंसिडेंस. लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट कोइंसिडेंस था. अच्छा, अब हम परेशान, सब शूट हो गया है, सब कुछ हो गया है, POSM प्रिंट हो गया है, ये क्या करें हम? ये तो अवश्य उन्होंने अपनी कैंपेन रोल आउट कर दी है, तो अब तो हम ये वी कांट डू द सेम थिंग. मतलब ये तो फिर वो लग जाएगा कि ये बात किस ईयर की है? ये है बात 2012 की बात. 2012 की बात है. सो अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई. इट वाज एट दैट पॉइंट वेरी स्ट्रेसिंग. लेटर ऑन हंसी भी आ रही थी कि मतलब कोइंसिडेंस भी ऐसा ही होना था कि जो डायरेक्ट कंपटीशन है उसने ही सेम, खैर नेचर भी कैटेगरी की सेम थी. सो खैर वी हैड टू ऑब्वियसली रीडू द होल थिंग इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक. कैंपेन एक हफ्ते डिले की, सब कुछ रीडू किया, उस वर्ड को निकाला अपनी कैंपेन से. और बाद में हंसी भी बहुत आई कि यार मतलब हाउ डज दिस इवन हैपन. दूसरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि while I was at Cadbury, we took on this project that we'll do the first digital billboard in Pakistan. And Shara Faisal पे we took a site and उसके ऊपर स्क्रीन इंस्टॉल करनी थी. और इट वॉज समथिंग दैट वॉज हैड नेवर बिन डन. और उसके अंदर ऊट पटांग मसले ना अथॉरिटीज़ के, कभी पुलिस आ जाए, कभी कुछ हो जाए. एक पॉइंट था कि 4 रातें जो है स्ट्रेट मैंने वहाँ गुजारी थी. और कभी पुलिस आके इक्विपमेंट ले जाए, उठा ले जो इंस्टॉल कर रहे हैं, कभी DC ऑफिस से कोई आ जाए, कभी कहाँ से कुछ आ जाए.
एंड इट वाज अगेन वेरी स्ट्रेसिंग बट हिलेरियस एज वेल कि यार ये क्या तमाशा चल रहा है, एक को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरा आके जो है तंग करना शुरू कर देता है। अब आप दुबई शिफ्ट हो गए तो आप ऐसी बातें करेंगे, अब कर सकते हैं ना। so I think it was at that point stressing जब हमारे साथ हो रहा था. Later on it was hilarious कि यार मतलब ये क्या चल क्या रहा था हमारे साथ. So it was interesting as well and I'm glad we took on these projects because सब में learning थी अपनी तरीके की. तो आप इजिप्ट में भी काम करते रहे, यू ट्रैवल्ड बैक एंड फोर्थ, और फिर नाउ यू आर इन दुबई, पाकिस्तान में. सो विच हैज़ बीन योर फेवरेट कंट्री सो फार एज अ वर्क एनवायरनमेंट, और क्या आपको डिफ़िकल्टीज लगती हैं दूसरी जगह जाके काम करने में? And I think Dubai is an excellent place to work with because I'll tell you something, because यहाँ पे diversity और it's like a melting pot of cultures इतना ज़्यादा है that people are open to accepting you. लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश इज़ वेल स्पोकन एंड वेल अंडरस्टूड. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है. ऑफ कोर्स हर जगह पे छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कल्चर डिफरेंट होता है, बट इन अ डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन यू विल मीट अ बंच ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम, दे आर ओपन टू लर्निंग फ्रॉम यू. सो आई फील कि बहुत ज़्यादा जो है ईजी है दुबई जैसी जगह पे आपका इंटीग्रेट करना इफ़ यू आर माइग्रेटिंग from Pakistan or anywhere else as well, versus any other place. For example, Egypt में language barrier बहुत बड़ा है. So until unless you don't speak the language and you don't understand the culture, it's a journey. मतलब आपको टाइम लगेगा. वो इजिप्ट ऐसी जगह नहीं है कि आप सामान उठा के चले गए और आप वहाँ पे इंटीग्रेट कर जाएंगे. मतलब ये स्ट्रगल होगी अच्छी खासी to be able to adjust. But that's not the case about Dubai. So I feel Dubai is an excellent place. Even if you want to eventually move on to another country later on, Dubai is a good place to start at least, to just get a flavor of how you work with different people from different cultures, because आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है और लर्निंग मिल जाती है कि क्या डायनामिक्स होते हैं ऑफ वर्किंग विद सच पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स. सो वर्क प्रेशर, वर्क लाइफ बैलेंस, आपने इसकी बात करी, तो हाउ डू यू फाइंड दैट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान एज कम्पेयर टू दुबई? आई थिंक दैट्स जो मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत बड़ा प्ले है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी वेलबींग को एज अ कंपनी ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. आई फील पाकिस्तान में कंपनीज माइट टॉक अबाउट इट बट इन एक्शन नहीं होता. यहाँ पे हमारे केस में लीडरशिप पुट्स इट इन एक्शन. मतलब वो खुद भी जो है डिसेंट टाइम पे निकल जाएंगे, नहीं रखेंगे मीटिंग्स शाम को, बहुत अर्ली मीटिंग्स नहीं रखेंगे, सुबह 9 बजे 10 बजे के बाद मीटिंग्स हम स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा वेरी फ्रीक्वेंटली दे ट्राई टू मेक श्योर कि ऑफिस के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है, बी इट साउंड हीलिंग, बी इट एनी प्लांट रिपोर्टिंग, इस तरह की रैंडम चीज़ें जो हैं हो रही होती हैं, विच इज़ जस्ट अ मेथड टू मेक श्योर पीपल आर नॉट स्ट्रेस्ड, द वर्क एनवायरनमेंट इज़ फन एंड एवरीबॉडी कम्स टुगेदर एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड बॉन्ड्स, बी इट इनसाइड द ऑफिस और आउटसाइड द ऑफिस. पाकिस्तान में आई फील कि एक तो जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस का ये एटीट्यूड है कि अच्छा हम कुछ कर रहे हैं तो हम आप पे एहसान कर रहे हैं, नंबर वन, विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों है ऐसा, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉइज और उनकी वेलबींग. और दूसरा ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक, अ लॉट ऑफ फ्लफ, बट इन एक्शन जो है ना आपको वो चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आती हैं. So I feel उस लिहाज से I work for a very wonderful organization and they really care about us in that way. सही. So obviously actions speak louder than words. So your shift from FMCG towards now tech marketing. So let's talk something about Spotify as well. कितना challenging था एक hardcore CPG product से एक tech oriented जो एक ऐप है उसकी मार्केटिंग देखना? अच्छा देखिए, क्योंकि मैंने एजेंसी साइड पे काम किया हुआ था तो आई वाज वेरी यूज्ड टू वेरी फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशंस एंड थिंग्स मूविंग रियली फास्ट एंड डिसीजंस हैपनिंग रियली फास्ट. और FMCG में आने के बाद जो है मुझे एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना शुरू हो गई थी. आई फेल्ट कि यार ये बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, एवरीबडी जम्प्स इन एंड हैज़ अ व्यू, चीज़ें डिले होती हैं, पीपल डोंट मूव फास्ट इनफ. तो ये जो है ना नैगिंग फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर हमेशा से FMCG साइड पे थी कि यार हम जल्दी क्यों नहीं कर सकते, हर चीज़ इतना लंबा, पैकेजिंग पे कुछ करना है तो 8 महीने का पूरा जो है ना कहते हैं प्रोजेक्ट का टाइम है, 8 महीने पहले प्रोजेक्ट डालो, फिर सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर आओ, ये फिर जाके होगा. 8 महीने में आपका जो लोकल कंपेटिटर है वो कहाँ से कहाँ 2-3 इनोवेशन जो है ना मार्केट में फेंक देता है. एंड ऑब्वियसली मल्टीनेशनल्स होती हैं, उनके अपने प्रोसेस होते हैं, सारे मामला होते हैं. एग्जैक्टली. सो टेक में आके अगेन ये मेरी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई बिकॉज थिंग्स मूव फास्ट, डिसीजन मेकिंग की लेयर्स आर मिनिमल, दे
have this idea कि अगर कोई market का expert है तो then you need to leave the decision making to this person and give him the freedom and to take the accountability as well. I mean success भी आपकी है और कुछ बुरा हो तो फिर उसको accountability और संभालना भी आप ही को है. So what that does is एक तो जो है आप उस लिहाज से जो है ना बड़े फ्री हो जाते हो कि यार you don't get bogged down. बाज़ दफ़ा बड़ा अच्छा आपको आइडिया आता है एंड जस्ट बिकॉज इतनी लेयर्स होती हैं, इतने लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि बाय द टाइम वो आइडिया एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, योर एक्साइटमेंट गोज डाउन. हियर इट्स नॉट द केस. हियर मुझे आज आइडिया आया, आई वुड जस्ट बाउंस इट ऑफ विद माय मैनेजर हु इज द डायरेक्टर फॉर द होल रीजन एंड एट मैक्स विद द एमडी एंड आई एम गुड टू गो. आई डोंट नीड टू गो टू एनीबडी एल्स एंड उनका भी ये रिस्पॉन्स होता है कि यार इफ यू सी लॉजिक इन दिस, इफ यू फील दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आइडिया, यू गो फॉर इट. सो दिस एम्पावर्स यू. दूसरा टेक ऑब्वियसली बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर इन FMCG तो देन द सप्लाई चेन इज एन एलिमेंट, प्लांट की कैपेसिटी इज एन एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एलिमेंट, आपकी पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल पे विजिबिलिटी, शेल्फ और ये और बहुत सारे जो है ना कहते हैं एलिमेंट्स आ रहे होते हैं. हियर आई फील के वो वाला एलिमेंट नहीं है. मतलब योर प्लेटफॉर्म इज योर प्रोडक्ट, बीच में कोई बैरियर नहीं है, यू कैन रीच डायरेक्टली टू योर कंज्यूमर एंड यू कैन फोकस ऑन द कोर जॉब विच इज मार्केटिंग. FMCG के अंदर मुझे ये एट टाइम्स फील होना शुरू हो गया था कि यार ये तो मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा हूँ, यार ये तो मैं फैक्ट्री मैनेजमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा 50% टाइम तो इन सबको मैनेज करने में जा रहा है, या मैं सेल्स टीम से लड़ रहा हूँ तो फाइनेंस से भी लड़ना पड़ता है. एग्जैक्टली, फाइनेंस. सो एट टाइम्स अब मुझे लगता है कि यार चलो शुक्र है, मतलब ये सारा हट गया. अब आई कैन फोकस ऑन कोर लाइक कंज्यूमर इनसाइट, उस इनसाइट को मार्केटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ टू promote my product in the right way, understand the behaviors of the consumer. I feel कि मैं अपनी जो concentration है, जहाँ मेरा passion है, वहाँ लगा पा रहा हूँ without a lot of the distractions. And I understand being an FMCG marketeer, वो दूसरे सारे elements बहुत important होते हैं, but like it's not an enjoyable thing. So here I feel it's easier in that way because you are able to concentrate where you should. It's so good to hear from somebody like from our generation, क्योंकि हम लोग जब पढ़ भी रहे होते थे तो FMCG वॉज दी बिग थिंग. हमारे सारे टीचर्स भी हम ज़्यादातर इंस्पायर्ड भी उनसे होते थे जो उस वक्त विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे किसी FMCG में काम कर रहे होते थे. बट इट्स सो गुड टू हेयर फ्रॉम, क्योंकि द जेन जी और द जेन अल्फा दीज डेज, उनके लिए वो इंस्पिरेशंस अब शायद वो वाली FMCG कंपनीज जो हमारे लिए होती थी वो नहीं रही हैं. वो तो दे आर ऑलरेडी इनटू टेक, बट दिस कमिंग फ्रॉम समबडी फ्रॉम आवर जनरेशन, इट फील सो गुड. तो चलें हम आपको एक चैलेंज देते हैं. चैलेंज ये है कि Spotify if was to ever collaborate with any of your ex brands, चाहे वो NFL हो या Mondelez हो, तो वो कौन से ब्रांड से करता और क्या करेगा? Cadbury. I think Cadbury is an excellent brand to partner with. It has a very good legacy. It is a very classy premium brand and I think the audiences are similar as well. Young adults उस तरीके से वो वाला मैच है. Plus Cadbury historically has used music in communication as well. So there is a natural match there. क्या करेगा ये वैसे सवाल थोड़ा सा जो है ना इस पर सोचना पड़ेगा, लेकिन ये कि एक natural link है, something around music of course, and maybe create music or have artists feature together, something to do on packaging. We did something very similar with Cornetto very recently. We had a limited edition Spotify branding on a Cornetto cone and हम आगे भी उनके साथ भी we are exploring further synergies. But I feel अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिस पे मैंने पहले काम किया हुआ है, I feel Cadbury is the one जिसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम हो सकता है. तो जैन साहब हैं भी Cadbury में, सुन रहे होंगे वो? जैन साहब यहाँ दुबई आ गए हैं एक्चुअली, वहाँ पे, लेकिन वहाँ गौहर और जवेरियाँ हैं. सही है. तो सच यानी कि कोलैबोरेशन होने वाली है, हम जल्दी कुछ देखने वाले हैं इंशाल्लाह. व्हाई नॉट? चले, नेवर से नेवर. ये तो तहा भाई की फेवरेट टैगलाइन बता दी आपने, व्हाई नॉट मेरी जान. हाँ उनकी तो मोहब्बत है ना. सही है. अच्छा, तो यार एक क्वेश्चन दैट आई रियली वांटेड टू आस्क यू. These days, as marketers, we talk all about digital marketing, performance, SEO, optimization, etc. But in countries like Pakistan, TV still has its own significance. For a product like you, जो कि एक tech-based खुद app है, I have seen Spotify's ad running on TV as well. So how, being marketing manager, do you think TV is still a very important medium? Why do you guys think कि जब आप लोगों का खुद एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप खुद टेक बेस्ड हैं, तो टीवी पे जाना क्यों ज़रूरी होता है ऐसे ब्रांड के लिए?
अच्छा देखिए, पाकिस्तान में स्पॉटिफाई इज स्टिल अ वेरी रीसेंट एंट्रेंट, आई वुड से हम वी आर इन आवर थर्ड ईयर. सो नेचुरली फ्रॉम एन अवेयरनेस स्टैंड पॉइंट, स्पॉटिफाई के नाम की अवेयरनेस या स्पॉटिफाई क्या है वो वॉज वेरी लो या प्रीटी मच नॉन एग्जिस्टेंट. लोग जो ट्रैवल करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपोजर लिया होगा, बाहर पढ़ के आए उन्होंने एक्सपोजर लिया होगा, बट मासेस को नहीं पता. बट मासेस इंटरनेट यूज करते हैं. आई एम श्योर आपने टिकटॉक देख लिया है कि मतलब वो मासेस ही हैं वहाँ पे सारे. So TV was the right medium to announce your arrival. Yeah. Just hammer the understanding कि हम Spotify हैं, हम एक global platform है, दुनिया की number 1 music listening app है, and ये we have to offer to the Pakistani audiences. So it was a good way to do that awareness drive on a mass level. And then once you hit a certain threshold, then it's okay to start focusing on digital and start focusing on high intent audiences which are already there, which is easy to convert and everything. But I think from a marketing mix perspective, initially ये करना बहुत ज़रूरी था, because ये काम इतनी mass reach सिर्फ digital से लाना would be a challenging So even for a platform like Spotify, if you are top of the funnel, जहाँ पे आपको awareness का game करना है, so for a country like Pakistan, you believe कि भाई हमारे लिए still market reality है ना. Yeah. मतलब आपकी डिजिटल पेनिट्रेशन कितनी होगी राइट नाउ? 50 हो जाएगी, 55 हो जाएगी. टीवी की कितनी? 97-98% है. और पाकिस्तान में अच्छी चीज़ ये, अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान में आपका सारा नेशनल टीवी व्यूइंग हैबिट है. इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर कोई अलग चैनल जो है चल रहा है और बहुत लोकलाइज टीवी स्टेशन कल्चर है. यहाँ तो आपने जब नेशनल 70% is single TV phenomena. Exactly. Single TV households हैं आपके पास. So it's easy. I mean it makes sense from a ROI perspective as well कि भाई मैं इतने पैसे लगा के ये रीच अटेन कर लूंगा in one go, and I will be able to then move on to the next step in my funnel. Consideration की तरफ, conversion की तरफ मैं उस तरफ आ पाऊंगा. So it makes sense that आप जो है अगर आप if you want to move fast, this is the best way. नहीं, I completely understand and I am also of the same view, because I think कि कोई भी मीडियम अच्छा या बुरा नहीं होता. It will always depend upon आप ब्रांड कौन सा है और आप ब्रांड के कौन से फनल स्टेज पे हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस हिसाब से you need to take a call. चलें, ज़बरदस्त हो गया. So this now let's move towards some fun element. It will be a rapid fire round. Oh my God. मैं आपको 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा. ठीक है. और you need to be as short, crisp and sweet as you can be. Okay. So your favorite boss so far? My current boss. यार ये आप सेफ खेल रहे हैं. नहीं, honestly, amazing guy, Hussein, and even the person before him, Ruthie, she's no longer my boss here in Spotify. Both have been like amazing people. Zabardast. Your favorite campaign? Spotify की जो पहली campaign थी, launch campaign थी, जैसा मूड वैसी धुन. That was my favorite campaign. वो जिसमें वो नच पंजाबन वाला गाना भी था जो टीवी पे भी चली है. जी. ज़बरदस्त. I also like that creative. लेकिन अभी हम रैपिड फायर राउंड में, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा. So your favorite book? My favorite book, this is a tough one. 48 Laws of Power. 48 Laws of Power. Any incident that made you frustrated? यार ये तो रोज होता है. देखें, a lot of incidents. Like I mean, for me, like I am a kind of person who likes to move fast. तो कोई भी जब थोड़ी लंबी कर रहा होता है ना, तो मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता हूँ. यार लंबी क्यों कर रहे हो? मतलब या तो काम करना है या नहीं करना है. तो आप मुझे कह रहे हैं मैं लंबी ना करूँ रैपिड फायर? चलो. Any jingle, any marketing jingle that you can recall? 0900786001. टेलीफोन. ये किसने बनाया था यार? वो यार एपिक और एक वो डिक्टोनिक वाला एपिक. मतलब इतने सालों बाद भी जो है ना उसकी रिकॉल है. मतलब ऐसा काम होना चाहिए. ज़बरदस्त. तो कोई जार्गन मार्केटिंग का जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. हाइपर लोकलाइजेशन. चलें, ज़बरदस्त. बड़ा ज़बरदस्त निकाला यार आपने हमारा रैपिड फायर राउंड, वरना लोग थोड़ा सा आगे पीछे. चलें, ज़बरदस्त. अगला जो सेगमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कि मैं आपको कुछ टैगलाइंस दे रहा हूँ. ठीक है. अब वो अगर इंग्लिश में है तो वो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करनी है. और अगर उर्दू में तो आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट. मुझे एक्सपोज करने वाले हैं, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है. कोई बात नहीं. तो अच्छा जी, तो तहा भाई की फेवरेट टैगलाइन से स्टार्ट करते हैं. व्हाई नॉट मेरी जान? क्यों नहीं मेरी जान? क्यों नहीं माय लव? ओके या क्यों नहीं माय लव. हाँ सही है. ओके. सीधी सादी खुशी है सुपर. स्ट्रेट फॉरवर्ड हैप्पीनेस है सुपर. मैं तो होंडा ही लेसा.
I will buy Honda only. I am loving it. मुझे प्यार आ रहा है. Finger licking good. उंगलियां चाटोगे इतना अच्छा. Listening is everything. सुनना सब कुछ है. ये तो फेवरेट है. बाई किया तो तुमने भाई किया. ये टफ है यार. बाई किया तो समझो तुमने भाई किया. समझो. ओके, बाई किया means you made a brother. जबरदस्त. शेयरिंग हैप्पीनेस. खुशियाँ फैलाना. खुशियाँ चख लो. टेस्ट हैप्पीनेस. ज़बरदस्त. चलें तो मूविंग ऑन. these days we talk about a lot of marketing trends. क्या हो रहा है आगे, फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? Any of the things that you think like कि यार ये मिथ है और ये शायद जल्दी बर्स्ट हो जाएगा? ये जो मिथ है ना AI वाला, कि AI जो है मार्केटिंग की जॉब्स को रिडंडेंट कर देगा या एजेंसी जॉब्स को रिडंडेंट कर देगा, आई फील ये बस्ट हो जाएगा. बिकॉज देखें, ह्यूमन एलिमेंट जो है ना, एक ह्यूमन जिस तरह की एम्पैथी टू द टेबल लेकर आता है या अंडरस्टैंडिंग टू द टेबल लेकर आता है, AI is all about just learning patterns and trying to fine tune them. But जो ingenuity और जो innovation और जो creativity एक human mind ला सकता है, वो आई डोंट फील AI लाता है. तो ये आजकल एक बड़ी डिबेट चली हुई है कि सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा. यू विल ऑलवेज नीड अ ह्यूमन एलिमेंट के बगैर नहीं हो सकता. ये ताहबाई वाला पार्ट काट देंगे, आपको बता रहा हूँ. He loves ChatGPT. कोई बात नहीं, ChatGPT तो we all love, हमारी सबकी जिंदगी आसान हो गई है. बट लाइक ChatGPT से उठा के आप फॉरन मतलब एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करते होंगे. आई एम श्योर आप उसके अंदर अपना कुछ ना कुछ डालते होंगे एलिमेंट. बहुत सारे लोग करते हैं वैसे. हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, इतनी बात नहीं करूंगा ताहबाई. चलो ठीक है, बाकी आप समझ जाएं. कहा कि नाम होने का बहुत फायदा उठा रहे हैं आप. तो अच्छा, तो Tala bhai, you have been great support for us throughout our BMLH journey. Anything that you would like to say about our community? हम एक BMLH का दुबई कनेक्ट भी करने जा रहे हैं. You are one of the speakers. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? It's excellent. It's excellent because जिस तरह की collaboration, जिस तरह की open mindedness to help and जिस तरह का response time आपका है उस ग्रुप पे, connecting people with the other person, tagging the right contacts, this is like you are doing a service to the industry. You are doing a very thankless job. I don't think you get thanked enough. And I hope that you continue doing this, and I hope you personally benefit from this as well. And I feel कि us as marketers, me including, we should contribute a lot more. जैसा आपको बता रहा था कि in my persona डिजिटल पे मैं थोड़ा ऑब्जर्वेंट ज़्यादा हूँ rather than very participative. But I would like to contribute. I would like to participate, and I feel when I look at you and other people doing that, it just makes me happy and it gives me inspiration as well. That yes, this is the core essence of this group, and people are living by example. So yeah, I mean it's an amazing initiative, and I only hope to see it grow. Chale, thank you so much. That's so kind of you, and we would also love to see you from getting transition from listening is everything to seeing is believing also. Definitely, so, definitely. Any message that you would like to give to young aspiring marketers? I am sure आप बहुत सारे लोगों की aspirations हैं, तो कोई future leaders के बारे में कोई message देना चाहेंगे? Be open. आजकल थोड़ा न्यूअर जनरेशन में मैंने ये देखा है कि अच्छा मैं एक्स्ट्रा काम क्या करूं, क्यों करूं, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे इसके, मैं जितने पैसे मिलेंगे उतना ही काम करूंगा, या व्हाई शुड आई टेक दिस बर्डन, या मैं किसी और का काम क्यों करूं, व्हाई शुड आई गेट एक्सप्लॉइटेड. Obviously you need to be intelligent and you need to protect yourself and your well-being, but at a young age it's easy to take additional responsibility and it always helps. आपको मैंने शुरू में अपना करियर बताया है, I have this habit of saying yes to challenges even when मुझे पता होता है कि अच्छा मैं I'm not equipped to handle it, and it has always helped me. वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, आप कुछ सीख ही लेंगे ना. और जिंदगी में कोई भी नई चीज़ सीखना जो है ना वेस्ट नहीं होता. इट विल कम इन हेल्पफुल इन सम अदर वे. मैं वो मार्केटिंग की डबल हैटिंग नहीं करता तो शायद मैं ट्रांजिशन ही नहीं कर पाता मार्केटिंग के अंदर. those 9 months were tough, like I told you, सुबह 9 से 9, but that opened the door for my transition from media to marketing and then from marketing in Mondelez to here where I am sitting. तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं और उस वक्त आप लार्जर पिक्चर नहीं देख सक रहे होते, और बाज़ दफ़ा फेलियर इन समथिंग might benefit you. I mean, a lot of time ऐसा हुआ है कि I had a setback and I was frustrated, I was upset and I thought कि यार इतनी effort की, ये किया वो किया, and 6 months down the line
एट टाइम्स 2 years डाउन द लाइन मुझे रियलाइज हुआ यार वो तो बहुत अच्छा हुआ, अगर वो हो जाता तो आज जो हो रहा है वो नहीं होता. तो थोड़ा सा ओपन माइंड, लेस ईगो, बीइंग हम्बल. सक्सेस shouldn't get to your head. आजकल ये सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, यू लाइक टू फ्लॉन्ट एवरीथिंग. आई अंडरस्टैंड एक वो माइंडसेट बन गया है, बट it's good to be humble and be humble in success, and it's good to be open and flexible, and then things happen. I mean, whatever positive energy you will put in the universe gives it back. और हमारे मजहब में भी यही है, या आप अच्छा करोगे इवेंचुअली आपके लिए भी अच्छा होगा. तो थोड़ा सा आई थिंक पीपल नीड टू काम डाउन and relax and try to be helpful and be flexible. Zabardast. So be flexible, keep your mind open, get ready for the challenges, or don't be afraid of the failures. Thank you so much, Tala bhai, for being with us. It was really nice having this candid conversation with you. It was nice being here. Thank you so much. I am a huge fan of your work. So Allah Taala आपको और तरक्की और इज़्ज़त दे. और if you are into music, then please do download Spotify right now, or you can foreign डेट नहीं करनी है आपने. तला भाई ने कह दिया है, तो अगर आपको दुबई आना है तो फिर आपको ये फॉरेन करना पड़ेगा. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर पावर्ड बाय पार्टनर्स माइको, स्पेशली गस्सान, who is leading this show, because we are just sitting here and having conversation with these just due to him. So thank you so much, Maiko, for this. Thank you so much, Tala bhai, for coming here once again. So this is your host Sohaib Hassan, co-founder BMLS, signing off.